Myself K.C. Bhushan invites all of you for the second class of meristematic tissue, especially class 9. As you know, tissue has classified into two major groups. The first one is meristematic and the second one is permanent tissue. Meristematic tissue is also subdivided into three types on the basis of location. The first one is apical meristem, the second is intercalary meristem, and the third is lateral meristem. Apical meristem is present both at the tips of root apex and shoot apex. Due to present on apex, it is named as apical meristem. क्या बताया आपको कि यह रूट एपेक्स अर्थात रूट के शीर्ष पर या शूट के शीर्ष अर्थात स्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है, जबकि दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट बिलो द लिप्स, it is present below the internodes or on either side of nodes. Intercalary meristem is present. The third one is lateral meristem. It is situated in the girth of plant body. Its main function is to increase the girth of plant, means lateral meristem increase the thickness of plant, while apical meristem takes continuously division, and with the help of intercalary meristem it increase the length of plant. As you know, apical meristem has two different type of theory also. The first theory is tunica corpus theory, means we can divide apical meristem on two parts. That one is tunica and corpus. The second is histogen theory. Tunica corpus theory, histogen theory. Tunica corpus theory. Tunica forms the outermost region of plant, while corpus forms the innermost part of plant. In the same way, histogen can be subdivided into three types: dermatogen, periblenum, and luron. Dermatogen, periblenum, and luron. Dermatogen forms the outermost part, या हम कह सकते हैं कि ये सबसे बाहर की ओर वाला भाग है. इसके नीचे का भाग पेरिब्लेम होता है, जबकि सबसे नीचे ल्यूरोम पाया जाता है. डर्मेटोजन स्किन का फॉर्मेशन करता है, जबकि पेरिब्लेम जो है यह कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, और ल्यूरोम यह वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू को बनाता है. तो एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित दो थ्योरी है. पहले थ्योरी को हम टूनिका कॉर्पस थ्योरी के नाम से जानते हैं, अर्थात इसमें दो पार्ट, टूनिका इज द आउटर मोस्ट पार्ट, corpus is the innermost part. In the same way, histogen theory is also differentiated into three parts: dermatogen, periblenum and luron, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट ये ल्यूरोम है, इसलिए कि ये ल्यूरोम जो है यह जाइलम और फ्लोएम को बनाता है. जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का निर्माण ल्यूरोम करता है. डर्मेटोजन आउटर मोस्ट पार्ट को बनाता है, जबकि पेरिब्लेम जो है यह कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, अर्थात रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स को बनाता है.
सेकेंड पार्ट मेरिस्टेमेटिक के बाद आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, इट कैन डिवाइड, इट कैन फॉर्म न्यू सेल। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू क्या है? वैसा टिश्यू जिसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। पहली बात, जो डिवीजन की क्षमता को खो चुका होता है, ऐसे टिश्यू को, या जो नए सेल को नहीं बना सकता है, ऐसे टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। परमानेंट टिश्यू की विशेषता हमने बताया कि इस सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट हैज लैक ऑफ डिवीजन कैपेसिटी, या द सेल हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। दूसरा कि परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। यह लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, और जहां तक सवाल है कि इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस हो सकता है। फिर से हम देखें कि व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? The tissue which have no capacity of division is called permanent tissue. The tissue which have lost the capacity of division is called permanent tissue. Permanent tissue is formed by the division of meristematic tissue. Intercellular space may be present in such type of tissue, and the most important thing is that it has permanent shape, size and function. Permanent tissue classification of permanent tissue. Classification of permanent tissue. Permanent tissue has classified into 3 types. The first one is parenchyma. The second one is collenchyma, and the third one is sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma एंड स्क्लेरेंकाइमा। परमानेंट टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वह पेरेन्काइमा टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब हम इससे रिलेटेड सबसे पहला वर्ड यही लावें कि हु क्वाइंड द टर्म पेरेन्काइमा। Who coined the term parenchyma? चूंकि यह प्लांट टिश्यू का एक पार्ट है और प्लांट टिश्यू में फादर ऑफ प्लांट टिश्यू एन ग्रीव को माना जाता है, इसलिए एन ग्रीव के नाम पर ही ये जाता है कि हु क्वाइंड द टर्म पेरेन्काइमा? एन ग्रीव। इन्होंने पेरेन्काइमा शब्द की खोज किया था और सबसे पहले बताया कि पेरेन्काइमा कैसा होता है। परमानेंट टिश्यू तो है, लेकिन ये होता कैसा है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया, जैसे कि यह थीन वॉल्ड होता है, अर्थात पतली दीवार वाला होता है। दूसरा पॉइंट कि यह लिविंग होता है। तीसरा पॉइंट आइसोडाइमेट्रिक, यह आइसोडाइमेट्रिक होता है और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। तो ये 4 विशेषताएं होती हैं जो कि पेरेन्काइमा में पाया जाता है। क्या है पेरेन्काइमा? तो इट इज ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। यह एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है।
पैरेन्काइमा शब्द की खोज किसने किया था? तो एन ग्रीव नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द की खोज की थी। पैरेन्काइमा की विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा? तो सबसे पहले कि यह थीन वॉल्ड होता है, मतलब कि इसकी दीवार काफी पतली होती है। दूसरा कि यह सजीव होता है, अर्थात इट इज लिविंग। एक ही प्रकार का सेल पाया जाता है, मीन्स आइसोडायमेट्रिक। आइसो समान, डायमीटर से बना है आइसोडायमेट्रिक। जितने भी सेल हैं वे एक समान होते हैं और सेल के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर हम इसे पहचान सकते हैं कि वास्तव में पैरेन्काइमा कैसा होता है। जहां तक सवाल है कि तो आप रफली डायग्राम जो है इसका बना सकते हैं पैरेन्काइमा का, और देख लीजिए ये थीन वॉल्ड हो गया। हर सेल के बीच में ये खाली स्थान है, इसी को कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो ये सब जो है पैरेन्काइमा की विशेषता होती है। पैरेन्काइमा से थोड़ा एडवांस्ड होता है कोलेन्काइमा। यहाँ पर पैरेन्काइमा में आपने कहा कि दीवार पतली होती है, यहाँ पर जानिए दीवार मोटी होती है, और चूंकि पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, जमाव होने के कारण जो खाली जगह है वो स्पेस कंप्लीटली भर जाता है, और इसके कारण हम कहते हैं कि कोलेन्काइमा हैज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। कोलेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ थीन वॉल्ड, यहाँ थीक वॉल्ड। सेल्यूलोज यहाँ है, यहाँ भी सेल्यूलोज होगा, लेकिन सेल्यूलोज के साथ यहाँ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन का भी डिपोजिशन होगा। प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस। काम का जहाँ तक सवाल है तो पैरेन्काइमा का काम फोटोसिंथेसिस भी है, स्टोरेज भी है, सेक्रीशन भी है, और यंग स्टेज में पौधे को सपोर्ट देना, ये भी काम पैरेन्काइमा का है। कोलेन्काइमा का बस इतना ही काम है कि यह प्लांट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, अर्थात ए प्लांट और प्लांट पार्ट, प्लांट ऑर्गन कैन बेंड इजिली बट नॉट ब्रेक। वह आसानी से झुक सकता है लेकिन वह टूटेगा नहीं। तो ये काम कोलेन्काइमा का है। मतलब वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और एक चीज कि कॉमनली हम कह सकते हैं, जैसे उसमें आपको हमने बताया कि पैरेन्काइमा की खोज जब हमने बताया कि आपको एन ग्रीव ने किया था, तो आप ये भी फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस आप ये भी जानिए कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सीडेन एंड स्वान। तो यहाँ पर और स्पेलिंग में SCHLEIDEN कहने के लिए हम इसको सीडेन पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको याद रखने के लिए प्रोनाउंसिएशन के दृष्टि से ध्यान दीजिए, CH को ही आप गायब कर दीजिए साइलेंट करके, और पढ़िए स्लीडेन, स्लाइडेन, SLEI स्लाइडेन, और हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं सीडेन। सीडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया था। उसी में से सीडेन साहब के नाम में ये उपलब्धि जाती है कि हु क्वाइंड द टर्म कोलेन्काइमा, तो जवाब मिलेगा सीडेन। हु क्वाइंड द टर्म पैरेन्काइमा एंड ग्रीव। पैरेन्काइमा इज लिविंग, कोलेन्काइमा इज स्लाइटली एडवांस्ड देन पैरेन्काइमा। जहां तक दोनों में अंतर का सवाल है, हमने आपको बता भी दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्ड जो यहाँ पर है वह है एस्क्लेरेन्काइमा। याद रखिए कि ये दोनों लिविंग होता है, ये क्या है, ये डेड है, मीन्स नॉन लिविंग।
It is non-living. You can say it as dead tissue है ये। दो तरह के यहाँ पर सेल कहिए, टिश्यू कहिए, इसमें पाए जाते हैं और उसका नाम है एस्क्लेरिड्स और दूसरा है फाइबर। यही दोनों के मिलने से एस्क्लेरेनकाइमा का फॉर्मेशन होता है। ये डेड है। यू कैन इजिली सी द एस्क्लेरेनकाइमा इन द बास्ट फाइबर ऑफ कोकोनट। नारियल का जो छिलका होता है, जो छील करके आप हटा देते हैं, उसमें जो धागे के जैसी संरचना होती है, दैट मे बी द एग्जाम्पल ऑफ एस्क्लेरेनकाइमा। वो धागे के जैसी संरचना एस्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, ये तीन प्रकार का परमानेंट टिश्यू होता है जिसका निर्माण भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा भी लिविंग है, लेकिन एस्क्लेरेनकाइमा जो है वह नॉन लिविंग होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक चीज और जानिए, मेटानियस, METANIUS, मेटानियस। यदि आपको अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे, जैसे हमने लगाया कि हु क्वाइंड पैरेन्काइमा, तो एन ग्रीव। हु क्वाइंड द टर्म कोलेन्काइमा, सीडेन। हु क्वाइंड द टर्म एस्क्लेरेनकाइमा, मेटानियस। अभी जरूरत पड़े या नहीं पड़े, लेकिन आगे के क्लास में आपको ये सब जो है सो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देगा, खास करके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या हायर लेवल स्टडी के ख्याल से। तो पैरेन्काइमा को खोजने वाले एनग्रीव, कोलेन्काइमा को खोजने वाले सीडेन और एस्क्लेरेनकाइमा को खोजने वाले मेटानियस, METTANIUS। और इन्होंने बताया कि ये जो है सो डेड टिश्यू होता है। एक यहाँ पर वैसे तो प्लांट टिश्यू को दो ही भागों में ये बांटा गया है। तो परमानेंट टिश्यू में ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट, सिंपल, और दूसरा इसी का भाग है जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और एक टिश्यू है जिसको आप स्पेशल में रख सकते हैं और उस स्पेशल टिश्यू का नाम है स्टोमाटा। एज यू नो, in plant there is no respiratory organ, no excretory organ. Now the question arises, how excretion takes place in plant, how respiration takes place in plant, how exchange of gas takes place in plant. तो आपका जवाब होगा कि it occurs through a minute pore-like openings known as stomata. What is stomata? It is a minute pore-like openings present at the lower surface of leaf. It is kidney shaped. ये kidney shaped हो सकता है, bean shaped, सेम का बीज, जो वेजिटेबल में सेम आप खाते हैं उसके बीज को आप देखेंगे, ठीक उसी टाइप का ये स्टोमाटा होता है। जहाँ तक सवाल है इस स्टोमाटा का, इट इज ऑफ बीन शेप्ड, बीन शेप्ड होता है। दोनों ओर से यह गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। गार्ड सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऑल दीज आर क्लोरोप्लास्ट। इस स्ट्रक्चर को आप गार्ड सेल कहेंगे, इसको कहेंगे स्टोमेटल पोर। और इसके बाहर से जो फिर दूसरा सपोर्टिंग होता है इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल, और फिर इसके ऊपर में यदि है तो उसे कहा जाता है एपिडर्मल सेल। काम यह भी एक प्रकार का स्पेशल टिश्यू ही है जिसका काम है टेक पार्ट इन ट्रांसपिरेशन, टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा ए प्लांट कैन गेट राइड ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑल्सो। तो इस प्रकार से ये तीसरा आपका हो गया इसमें, जिसको कि हम स्टोमाटा इस प्रकार से
परमानेंट टिश्यू को हम 3 में बांट सकते हैं, सिंपल परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ये 2 हो गया। तीसरा में जो है सो इस स्पेशल में स्टोमाटा को हम रख सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम का जहाँ तक सवाल है नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग फिर जाइलम और फ्लोएम के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि क्या है जाइलम, क्या है फ्लोएम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, हाउ जाइलम इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम, इज एनी अनदर नेम ऑफ जाइलम। दैट्स ऑल।